Students, our today's topic is Woodward-Fieser rules for alpha-beta unsaturated carbonyl compounds. So that means compounds containing carbon double bond oxygen, C double bond O. So this is carbonyl group. If there is hydrogen on this side, then it is aldehyde. If there is some R group, then this is known as ketone. If some this is alpha carbon, the first carbon to the carbon of functional group. This is beta. So if there is double bond between alpha and beta carbons, then it is known as alpha beta unsaturated carbonyl compound. So this C double bond O may be present within the ring or it may be present in the straight chain. So for such compounds, we will study Woodward-Fieser rules, that how can we calculate lambda maximum values from the already known values for different compounds. So first thing is that we assign parent value to certain systems. So there are three different kinds of systems. First is alpha beta unsaturated acyclic or 6-membered ketone. The value given is 215. So straight chain या 6 member वाली कोई ketone या aldehyde है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 215 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਕੀਟੋਨ। ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੈਟ ਇਜ਼ 202 ਨੈਨੋਮੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਲਈ 215 ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰਡ ਕੀਟੋਨ ਲਈ 202 ਹੈ। ਜੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੋਵੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਦੈਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨਡ ਇਜ਼ 207। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 215 ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੀਟੋਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਗ ਤਾਂ 202 ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ 207 ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਕਮਸ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਐਡਡ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਕਾਈਲ ਸਬਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਈਨਸ ਟਰਾਈਨਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੇ ਰਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਸਬਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੀਟਾ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੈਮਾ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨੈਨੋਮੀਟਰਸ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਬੀਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਬੀਟਾ ਲਈ 12 ਐਡ ਕਰਨਾ, for beta 12 nanometers, and for gamma and higher positions, gamma delta जो उस तो भी अगे होण तां उहनूं असीं 18 नैनोमीटर्स विच ऐड करना, ठीक है। सो पिछली वारी आपां 5 नैनोमीटर ऐड करते हुंदे सी डाईइनस ट्राईइनस वगैरह वाले। सो दिस टाइम 10 12 18 अल्फा बीटा गामा पोजिशंस ते। दैन कम्स each exocyclic double bond. Exocyclic सानूं पता है ये विच इज़ present on the edge of the रिंग, 1 कार्बन ऑफ द रिंग सिस्टम। जे ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨੈਨੋਮੀਟਰਸ ਦੇਣਾ ਵੈਲਿਊ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਕਸੋਸਾਈਕਲਿਕ ਟੂ 2 ਰਿੰਗ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਕਸੋਸਾਈਕਲਿਕ ਜੇ 2 ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆ 2 ਰਿੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੋਸਾਈਕਲਿਕ ਟੂ ਬੋਥ ਦ ਰਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸੋਸਾਈਕਲਿਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀ। ਸੋ 2 ਰਿੰਗਸ ਲਈ ਤਾਂ 5 ਐਂਡ 5 10 ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਕਸੋਸਾਈਕਲਿਕ ਟੂ ਬੋਥ ਦ ਰਿੰਗਸ 10 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਵੈਲਿਊ 5 5 ਹੋਗੀ। ਦੈਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸੀਟਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ C ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਥਰਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਫਿਰ ਡਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 30 ਨੈਨੋਮੀਟਰਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਹੋਮੋ ਐਨੂਲਰ ਕੌਨਜੂਗੇਟਡ ਡਾਈਈਨ, ਇਹ ਦੇਣੇ ਆ 39 ਕਿ ਕਾਰਬੋਨਿਲ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ C 2 ਨੇ,
तो ਉਹਦੇ ਲਈ we give 39 nanometers, that is for homoannular conjugated diene. If you remember last time ਆਪਾਂ ਹੈਟਰੋ ਤੋਂ homoannular ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੋਐਨੂਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰਿੰਗ 'ਚ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 39 ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹਾਇਰ। 39 ਨੈਨੋਮੀਟਰਸ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਫॉर ਹੋਮੋਐਨੂਲਰ ਕੌਂਜੂਗੇਟਡ ਡਾਈਈਨ। फिर आ गए ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स असी ज़्यादा नहीं करने, सिर्फ OH लिए एक बारी आप लर्न कर लिए वैल्यूज़। OH इफ प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन तो 35 वैल्यू है। आ 3 वैल्यूज़ याद कर लिए OH वास्ते, 35, 30, 50 अल्फा बीटा गामा पोजीशन से। बाकी दियाँ फिलहाल वी नीड नॉट लर्न दीज वैल्यूज़, एग्जाम वेले नेड़े देख लेंगे, घट आउंदे आ ग्रुप्स वगैरह। ओके, पहला बेसिक लर्न कर लिए कि किवें कैलकुलेट करीदा। So first given example is this. Now we have to look for the system कि आ इन्ना सिस्टम है साडा डबल बॉन्ड वाला। तो एक पिछली बारी आपां दोनों साइड तो कट करते हुंदे सी सिस्टम नूं जदों अटैच्ड अल्काइल ग्रुप्स देखने हैं या रिंग रेजिड्यू देखना है। हुण अल्काइल ग्रुप्स असीं देखांगे कि कित्थे कित्थे ने। दिस टाइम वी विल नॉट कंसीडर दिस क्योंकि ये अल्फा नहीं है, असी शुरू अल्फा तो करना है कि आ होगी फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, दिस वन आ अल्फा होगी तो आ बीटा होगी। हुण ये वाला जिहड़ा CH3 है ये अल्फा बीटा तो होवे फिर तो असी कंसीडर करना अल्फा बीटा गामा तो, नहीं तो आ शुरू वाला पार्ट है जिहड़ा इहनूं असी इग्नोर ही कर दिंदे कि इहदे नाल की लग्गिया होया। सो देयर इज़ 1 CH3, द सिस्टम इज़ ओपन चेन सिस्टम, द पेरेंट वैल्यू असाइंड वुड बी 215 एंड देयर इज़ 1 CH3 ग्रुप प्रेजेंट एट अल्फा पोजीशन। अल्फा लाई वैल्यू असी 10 असाइन करते हैं, है ना। सो ये 215 प्लस 10 दो ही चीज़ां ने ये, बाकी का नहीं ऐड होगा। 215 एंड 10 नैनोमीटर्स फॉर दिस CH3 एट अल्फा पोजीशन। पेरेंट वैल्यू दिस इज इंक्रीमेंट, सो द टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 225। एक्चुअल वैल्यू है जी प्रैक्टिकली देखते हैं 220 नैनोमीटर्स है, सो इट इज़ क्वाइट क्लोज। द नैक्सट एग्जाम्पल इज़ दिस कंपाउंड। ये देखने की जी कोशिश करिए। नाउ दिस डबल बॉन्ड इज़ एक्सोसाइक्लिक विद रिस्पैक्ट टू बोथ द रिंग्स। एक तो ये चीज़ दिस रही है। अच्छा हुण एक C डबल बॉन्ड ओ जो हैक्सा साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है, तो वैल्यू असी देंगे नूं 215 जो ओपन चेन है, या फिर 6 मैंबर्ड रिंग का पार्ट है तो 215। एक तो वैल्यू देती 215। इनक्रीमेंट्स के फिर देखिए रिंग रेजिड्यू होंगे हैं, तुहानूं दस्सिया कि इस बारी आपां अल्फा कार्बन तो शुरू करना है। दिस इज़ अल्फा, दिस इज़ बीटा, सो अल्फा बीटा। सो अल्फा नूं असीं देखना कि जे कट्टना है तो एक तो इत्थों कट्टांगे, है ना। सो विल इग्नोर दिस, आ पार्ट है जिहड़ा इहनूं इग्नोर कर रहे हैं आपां। सो एक आहा हो गया। सैकेंड इज़ बीटा नूं कट्टना पैना 2 थां तो, राइट। सो बीटा नूं सैपरेट करने लई आ पिक्चर दिखाया भी होया। दिस इज़ अल्फा, दिस इज़ बीटा। To cut this part, this system away from the ring, we have to give these cuts. अल्फा तो एक कट है तो 2 बीटा के कट ने। तो जो असीं देंगे पेरेंट वैल्यू इज़ 215, दैन रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन इज़ 10 नैनोमीटर्स। 2 रिंग रेजिड्यूज एट बीटा पोजीशन इज़ 12 × 2 24 होर ऐड कर देंगे 224 नैनोमीटर्स प्लस 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड विद रिस्पैक्ट टू 2 रिंग्स 10 नैनोमीटर्स ये ऐड कर देंगे। सो होर तो ये ना तो एक्सटेंड हो रही है कॉन्जुगेशन, ना होमोसाइक्लिक कोई सिस्टम है, होमोएनुलिन भी नहीं है। ओके, लेट्स सी कि की ऐड किया हुआ है। सो द वैल्यू इज़ 215, 10 नैनोमीटर इज़ रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन, 2 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स, राइट। सो कैलकुलेट करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਕੇ द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस इज़ प्रैक्टिकल वैल्यू, तुसी तो कैलकुलेट करके ही दसनी होगी ना। ओके, लेट्स गो टू द नैक्सट सिस्टम। आ हो गया, दिस इज़ द सिस्टम। अच्छा हुण ये देखिए तो क्योंकि असी कार्बनिल कार्बन इत्थों शुरू तो लेना तो इन्ना तो बेसिक सिस्टम है ना।
सो एक डबल बॉन्ड आ है जो एक्सटेंड कर रहा है कॉन्जुगेशन बिकॉज इट इज़ बीइंग सेपरेटेड बाय दिस डबल बॉन्ड. सो द बेसिक और पेरेंट वैल्यू शुड बी 215 फॉर hexacyclic system. Then ring residues आ साइड तो आप देखना ही नहीं है. वी लुक फॉर अल्फा बीटा गामा ते डेल्टा है ना. सो इत्थों कट करोगे इत्थों कट करोगे हो तक तो कट नहीं करना. सो वन सबस्टेंट रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजिशन 10 ऐड करोगे. फॉर दिस 10 ਇਹਦੇ ਲਈ 10 ऐड करोगे. ਇਹਦੇ ਲਈ 18 ऐड करोगे. गैमा जो उस उपर डेल्टा जो उस तो भी दूर वाली कोई होवे पोजीशन तो वो 18 ऐड करते हो. सो दिस इज़ 10 18 फॉर दिस. वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दिस इज़ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड. then one double bond extending conjugation, this double bond is extending conjugation 30 ਇਹਦੇ ਲਈ. then because it is homoannular system 39 ਇਹਦੇ ਲਈ. दोनों double bonds they are lying in the same ring. so these are to be added. ये additions ने. so की कुछ ऐड किया. parent value is 215. then is one alpha ring residue, one gamma delta ring residue, one exocyclic double bond, one double bond extending conjugation, one homoannular conjugated diene. so सारी चीज़ें ऐड करके the value obtained is 317 nanometers. नाल nanometers भी लिखना है. okay then coming to the next system, this is our next system. हुण इस बारी बेटा 5 membered ring है. 5 membered ring ਲਈ वैल्यू हैगी 202 नैनोमीटर्स. सो कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि 5 membered ring ते है सो 202 हो गई ये ਲਈ. then रिंग रेजिड्यूज साडा आ अल्फा हो गया कार्बन. आ फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है. इस तो अगली कार्बन अल्फा. दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा, दिस इज़ डेल्टा. तो जो कट करांगे एक तो सबस्टेंट हो गया बीटा ते आ वाला अल्काइल ग्रुप, अल्काइल सबस्टेंट. आ हो गया रिंग रेजिड्यू, रिंग का पार्ट कटना पैना है. एंड दिस इज़ ऑल्सो रिंग रेजिड्यू. सो यू राइट 202 nanometers इज पेरेंट वैल्यू. then one alkyl substituent at beta position idly 12 for this 12 nanometers. one ring residue at gamma position is 18. delta ਲਈ v 18. then any exocyclic double bond extend ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ conjugation क्योंकि नहीं हो रही है right. this is exocyclic double bond इस रिंग ਦੀ edge ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ double bond. so this is exocyclic double bond 30 ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਡ ਕਰੋਗੇ. then because दो डबल बॉन्ड्स वाला अपना सिस्टम है तो आ फालतू डबल बॉन्ड है जोड़ा इस दे नाल कॉन्जुगेशन च. कॉन्जुगेशन मीनस इत्थे सिंगल फिर डबल आउंदा है ऑल्टरनेटली है ना. ओके सो इहदे लई एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन लई 30 नैनोमीटर्स देओगे राइट. एक्सोसाइक्लिकली 5 देओगे 5 नैनोमीटर्स. ओके नाउ द कैलकुलेटेड वैल्यू शोन इज आहा चीज़ें इस तरह लिखोगे. पेरेंट वैल्यू 202. alkyl substituent at beta position is 12. one ring residue at gamma position is 18. one ring residue at delta position is 18. one exocyclic double bond is 5 nanometers. double bond extending conjugation is 30. so सारे नू add up करके we got the value as 285 nanometers. now the next one ਇਹਦੇ ਲਈ देखो जरा की होगा. now the system is up to this है ना. शुरू वाला आप देखना ही नहीं, इधरली साइड देखनी नहीं, ये तो इग्नोर्ड है. अच्छा हुण रह गया कि दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन. ये दो अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स ने दिस एंड दिस बीटा पोजीशन पे. सो बेसिक वैल्यू 215 है पेरेंट वैल्यू 215 एंड 2 अल्काइल सबस्टिट्यूएंट मिथाइल सबस्टिट्यूएंट्स एट बीटा पोजीशन. बीटा लिए असीं 12 वैल्यू देने हैं. 12 into 2 दो ग्रुप्स लिए 24 ऐड कर देंगे इन 215. सो दैट इज़ योर आंसर. पेरेंट अल्फा बीटा 215 ते 2 बीटा अल्काइल सबस्टिट्यूएंट्स ये लिए जो भी आप किया सी कैलकुलेट. ओके दैन कम्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. इट इज़ दिस वन. ये कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ी गलत दी हुई है. तुसीं हुण ये जे देखोगे ओपन चेन सिस्टम है. सिस्टम इज़ अप टू दिस
इत्थों लैके इन्ना सिस्टम है अपना। सो इनू अलग करने लिए इत्थों कट करना पैना, एक इत्थों कट करना पैना। पेरेंट वैल्यू ये तुसीं देओगे 215, ओपन चेन सिस्टम है। सो आ होगी थोड़ी अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन तो एक रिंग रेजिड्यू जो ये 10 नैनोमीटरस देओगे, तो ये बीटा वाले लिए देओगे 12 नैनोमीटरस। राइट, अल्काइल सबस्टिट्यूट ना अल्फा तो ना बीटा तो, पर जिथे इन्हें कैलकुलेट किया हुआ बीटा वाला एक्सट्रा लाया हुआ, देर इज़ नो बीटा अल्काइल सबस्टिट्यूट लग्या हुआ ना। सो आ गलत लग्या हुआ बेटा ये, है ना। या फिर ये अकॉर्डिंगली जो करना, वी हैड टू पुट 1 मिथाइल ग्रुप हेयर, फिर सो कैलकुलेट इन्हें गलत तरीके ने किया हुआ। ओके, दैन कमिंग टू द नैक्सट एग्जाम्पल, इट इज़ दिस। ये भी क्योंकि 6 मैंबर रिंग पर पई हुई है कार्बोनिल ग्रुप, सो पेरेंट वैल्यूज 215। दैन कटिंग द सिस्टम, इस साइड तो कटना ही नहीं है ना, विल कट इट फ्रॉम हेयर एंड विल कट इट, बस जस्ट एक थां तो ही कटना। तो ये हो गया अल्फा एंड बीटा। बीटा पोजीशन तो रिंग रेजिड्यू कटिया था 10 नैनोमीटर्स ऐड करूँगी, 215 प्लस 10 नैनोमीटर्स। दैन एनी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है ही नहीं। ओके, अल्फा पोजीशन तो कुछ नहीं हैगा, क्योंकि असी तो इधरली चीज़ देखनी है, ये भी गलत किया लगता है। इन्ना सिस्टम देखना, तो लास्ट पार्ट में करन लई जे तो इत्थे हुंदा किते इत्थे हुंदा अल्फा तो फिर लाउंदे आपां, सो गलत कैलकुलेट किया होया। दैन कमिंग टू दिस, अच्छा इत्थे है अल्फा पोजीशन तो लैट्स कैलकुलेट फॉर दिस। अच्छा, ये सामने इस तरह का दिता हुआ है कि गिवन कंपाउंड इज़ एक्सपैक्टेड टू हैव द स्ट्रक्चर ए और बी, तो यूवी स्पैक्ट्रम दसिया हुआ है कि 252 नैनोमीटर्स से एब्जॉर्ब करता है, उस लिए कैलकुलेट की हुई वैल्यूज़। सो इसलिए ये फर्स्ट लिए तो इन्नी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सैकेंड के स्ट्रक्चर के हिसाब नाल कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ 215 फॉर दिस वन, क्योंकि ओपन चेन सिस्टम है। तो रिंग रेजिड्यू, दिस इज़ अल्फा, दिस इज़ बीटा, एक इत्थों कटना पैना तो एक इत्थों कटना पैना। सो बीटा तो हो गए 2 रिंग रेजिड्यूज, अल्फा तो एक मिथाइल ग्रुप हो गया, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। सो 215 प्लस आ बीटा वाले लिए 24, अल्फा वाले लिए 10, 34 ऐड हो गए 215 एंड 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लिए 5। सो द कैलकुलेटेड वैल्यू कम्स आउट टू बी 254। दिस मीन्स द गिवन कंपाउंड जो ऊपर समझ पूछा है, इट इज़ दिस वन, स्ट्रक्चर शुड बी दिस। ओके, देन यू विल कैलकुलेट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर दिस एंड दिस। आ स्ट्रक्चर लिए बेटा लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस स्ट्रक्चर, इट्स गिवन इन योर बुक। सो ये आवर सिस्टम इज़ अप टू दिस, आ सिस्टम है साडा एन OH ग्रुप आ गया 35 पढ़िया से अल्फा पोजीशन ते। दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा सेकेंड वाली। तो इनू कट ऑफ करने लई एक तो इत्थों कट कर देंगे बीटा पोजीशन तो, 1 इज़ मिथाइल सबस्टिट्यूट एट बीटा, पहला अल्फा का कर लिया 215 इज़ द पेरेंट वैल्यू, दैन 1 सबस्टिट्यूट एट अल्फा पोजीशन OH सबस्टिट्यूट है जो ये 35, दैन 1 अल्काइल सबस्टिट्यूट एट बीटा पोजीशन इज़ दिस, ये ऐड कर दो तुसी बीटा लिए 12, रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन लिए भी 12। इनिया चीज़ें ऐड करनिया ने, कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू जिन्नी भी होंगी है। दैन यू विल कैलकुलेट फॉर दिस स्ट्रक्चर, दैन कैलकुलेट फॉर आ ड्रॉ करूँगी स्ट्रक्चर, दैन यू विल कैलकुलेट इट फॉर लैम्डा मैक्सिमम फॉर दिस स्ट्रक्चर, दैन फॉर दिस स्ट्रक्चर। ऐसे लिए देखिए जी, लेट्स सी आवर सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अप टू दिस एन है।